देखो माइटोसिस थी, माइटोसिस वाज वेरी इजी, ठीक है, मियोसिस भी बहुत इजी है, बट थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू नीड फॉर द मियोसिस। माइटोसिस में जो किया था दैट वाज कि you use which type of cells? Somatic cells, है ना? Somatic cells you have used, and the parent cell was 2N and it was dividing, it was forming कितने? 2 cells of 2N, means ploidy was same, ठीक है? वहाँ पे जब स्टार्ट हुआ था तो phases आई थी, interphase, then prophase, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये था ओवरऑल माइटोसिस, है ना? बट मियोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस है, देयर इज लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इन मियोसिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर ऑफ कोर्स इंटरफेज आएगी, so this interface को you will write interphase 1, ठीक? क्योंकि meiosis is divided into 2 parts, meiosis 1 and meiosis 2। तो ये जो interface है, first वाली interface, this is the most important interface for every cell, like whether it is a plant cell, whether it is a animal cell. This first interface is very important and it is similar to the interface which you have seen in case of माइटोसिस, राइट? यहाँ पे जो हुआ था the most important was the S phase where replication of DNA has taken place, right? यहाँ पर भी in this interphase S phase is a compulsion, means replication होगा। क्या हुआ दिशा? replication होगा इस interphase में, right? चलिए, तो interphase 1 हो गई and then after that meiosis 1 will continue। meiosis 1 में भी सेम phases, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, यही 4 phases रहेंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इस प्रोफेज के लिए छोटा सा आप याद रखोगे, LZBDD, है ना? क्यों? LZBDD क्या क्या है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, बोलो बेटा माइक पे, पैसिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, ठीक है? LZPDD ऐसे याद रख लीजिएगा। जो भी टाइप ऑफ आपको बनाना हो कुछ अपने लिए, इसको बना लीजिए। कि लेके ज्यादा पैसा दिल्ली देखने गए, अब जी नहीं है यहाँ पे, लेके ज्यादा पैसा दिल्ली देखने गए, दिस इज द ओनली टाइप ऑफ प्रोवर्ब आई गॉट फॉर दिस। ये आप चाहिए तो बना लीजिए, LZPDD, LZPDD, क्लियर? यहाँ तक क्लियर सबको? एंड आफ्टर दैट मेटाफेज आएगी, वही सेम टाइप से एनाफेज आएगी, टेलोफेज आएगी। ऑफ कोर्स नॉट सेम टू द माइटोसिस, डिफरेंस होने वाला है। जस्ट ट्राइंग टू से कि जैसे दिस इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, यहाँ पे डिवीजन नहीं है, जस्ट 1 पार्ट का है। आफ्टर दैट मियोसिस 1 जब हो गई तो मियोसिस को हमने अभी क्विक डिवीजन 1 and 2, ठीक है? मियोसिस 1 में फर्स्ट जो आप देख रहे हैं दिस इज द इंटरफेस 1, उसके बाद प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1, ठीक? यहाँ पे मियोसिस 2 के स्टार्ट से बिफोर एक 1 और फेज आने वाली है, जिसको यू कैन काउंट इंटरफेज 2, ठीक है? दिस इज आल्सो रिकॉर्डेड एज इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस, ठीक?
then prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. ठीक है, अब याद रखना है कि this interphase 1 is very important in the respect कि यहाँ पे DNA replication हो रहा है, और याद रखेंगे कि DNA replication is taking place only once, एक ही बार हो रहा है, और that is in this interphase 1. Interphase 2 is a type of preparatory phase before meiosis 2. ठीक है, a type of preparatory phase before meiosis 2. याद रखना है कि no DNA replication takes place here. ठीक है, no DNA replication takes place here. तो ये कुछ important चीजें हैं, बाकी तो rest of the phase will continue. अब ये जो देख रहे हैं आप prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2, whatever you will get the result of meiosis 1, उससे this will continue, यानी कि meiosis 1 के बाद you are going to get 2 cells. 2 cells मिलने वाले हैं, right? ऐसे कुछ, right? And उसी से you are going to do the mitosis. यानी this is the mitosis of N. Haploid वाले cells की this is the mitosis. So mitosis will continue, just mitosis has to take place. So usually ये जो आपको पढ़ाई नहीं जाती है meiosis, क्योंकि it is having the similar steps as the mitosis are having. End result आपको मिलेगा, that is the 4 cells, 4 haploid cells you are going to get, है ना? तो ये 4 होने वाले हैं, and mitosis का end result था 2 diploid cells, and meiosis का end result is 4 haploid cells. ठीक है, this is the total summary of the meiosis. I hope कि ये clear है सबको. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, very good. तो चलिए let's start with the interphase. Okay, यानी कि meiosis 1 से हम starting, interphase से start कर रहे हैं. इजी है, ज्यादा किसी को इशू नहीं आएगा. इंटरफेस का सबको पता है कि हाउ अ सेल लुक्स लाइक इन इंटरफेस. इंटरफेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी, बुद्धू बच्चों, कोई भी फेज हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑलवेज इंटैक्ट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल कर दोगे तो सेल विल डाई. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, इंटैक्ट है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट. ठीक, तो ये रहने वाला है. और क्या दिखना चाहिए इंटरफेस में? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस इज प्रोमिनेंट, अच्छे से दिख रहा है, डिस्टिंक्ट है. और ये क्या है भाई? क्रोमैटिन. क्रोमैटिन. और क्या चीज डुप्लीकेशन हुई है भाई? ये तो डुप्लीकेट हुआ, डीएनए इज डुप्लीकेटेड. व्हाट एल्स इज डुप्लीकेटेड? वो सब तो भूल गए थे, बट यार अपना बैकग्राउंड सेंट्रियोल्स दिखते हैं, राइट? सेंट्रियोल्स दिखेंगे इन अ पेयर एंड एक ही पोल पे दिख रहे हैं एंड टुगेदर है. ठीक है, जस्ट ऑन वन पोल टुगेदर. सो दिस इज द इंटरफेस 1.
नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट क्या आ जाएगी? प्रोफेज। प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 की कौन सी? लॉन्गेस्ट स्टेज, लेप्टोटीन, LZPDD, याद रखेंगे सबको LZPDD। यस रेशमा, लेप्टोटीन, बिल्कुल सही, लेप्टोटीन। सो आपको जैसे पता है कि व्हेन वी हैव डन द माइटोसिस, तो वहां पे हमने देखा था कि प्रोफेज 1 को आई हैव ट्राइड टू डिवाइड इनटू 2 पार्ट, है ना? ये लाइक अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज ऐसे करके बताया था। तो वहां पे आई एक्सप्लेन यू कि इन द प्रोफेज 1 द होल क्रोमैटिन लाइक इट वाज डुप्लीकेटेड, इट वाज जस्ट लाइक अ बॉल ऑफ वूल। तो एक स्टेज बताई थी दैट वाज स्पाइरीन स्टेज थी, ठीक। आफ्टर दैट प्रोफेज 1 के एंड आते आते वी हैव सीन के जो क्रोमोसोम्स अपने फॉर्म में आने लगे थे, लाइक कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम वाज पार्शियली कंप्लीटेड, बट दैट वाज बेस्ट सीन इन द मेटाफेज। बट यहाँ पर क्रोमोसोम अभी ही कंडेंस हो जाएंगे, राइट? क्रोमोसोम कंडेंसेशन विल टेक प्लेस हियर। अच्छा, क्रोमोसोम कंडेंसेशन डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म, कि कैसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? तो लाइक आपने कहीं कहीं सुना होगा लैम्ब्रश क्रोमोसोम, लैम्प ब्रश, सिंपल लैम्प को सर्व करने वाला ब्रश। So chromosomes, they are having the structure of that. Lambrush chromosomes, they are not seen in human beings. एक चीज बिल्कुल याद रखेंगे कि meiosis always takes place in gametic cells, right? यानी कि oocytes में या मतलब gametocytes में, यानी कि spermatocytes या फिर oocytes में मिलने वाला है। So this Lambrush chromosome is seen in most of the invertebrates, birds में, reptiles में और invertebrates में भी, ठीक है? ये तो vertebrates है, ओके? Most of the invertebrates plus birds, reptiles, इन सब के oocytes में this stage is seen, उनके प्रोफेज स्टेज में, in their प्रोफेज। लैम्ब्रश क्रोमोसोम वहां मिलता है। कैसा होता है? लाइक ये क्रोमोसोम्स है, आपको देखो जब क्रोमोसोम आ रहा है तो ये ऐसे हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड की साइड हो जाना चाहिए। विद प्रोफेज तक आते आते यू विल वॉच क्रोमोसोम लाइक दिस, यहाँ पर तो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है? बट हाउ दे आर ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ टू शो देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स, दे आर लाइक दिस, कुछ ऐसे बनाया है, लाइक लॉट ऑफ लूप्स दे आर शोइंग, है ना? लॉट ऑफ लूप्स दे आर शोइंग। तो जब ये होता है तो इसको तो कहते हैं सेंट्रोमियर, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। यहाँ पे बहुत सारे लूप्स आ रहे हैं, सो इस पॉइंट्स को कहते हैं क्रोमोमियर, क्रोमोमियर। याद रखेंगे, ठीक है? समझ में आया? इससे आपको क्वेश्चन आ रहा है, इससे क्वेश्चन आ रहा है। एक व्हेन आई वाज, बस इतना पढ़ लो, बस ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी इसमें क्योंकि अभी नहीं है एनसीईआरटी में। बट व्हेन वी वर डूइंग द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, एक क्वेश्चन में लैम्ब्रश क्रोमोसोम था, ठीक? तो एटलीस्ट यू मस्ट बी अवेयर कि होता क्या है लैम्ब्रश क्रोमोसोम, इसीलिए आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन ये होता है ना कि आपको टर्म मिल जाएगा, क्रोमोमियर मिल जाए, सेंट्रोमियर मिल जाए, तो सोचोगे उस टाइम में क्या था। जो चीज पढ़ी होती है दैट इज बेस्ट रिमेंबर्ड, जो नहीं पढ़ी होती है उसमें हम क्या कंफ्यूज होते हैं। एट दैट टाइम वी थिंक कि ये हमने पढ़ा था पर हमें याद नहीं आ रहा है, ये लगता है कि ये हमारी टीचर ने पढ़ाया था बट वी आर नॉट रिमेम्बरिंग। इससे बेहतर है कि उसको जान लो कि व्हाट इज दिस। सो लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह से दिखते हैं, दीस पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रोमोमियर, राइट? और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, आपको बेस्ट पता है, दिस इज सेंट्रोमियर, ओके? तो चलो लेप्टोटीन पे आ जाओ। अब ये तो हम वी आर डूइंग विद दिस नॉर्मल वाला सेल्स ना, नॉर्मल एनिमल सेल्स, बट वी आर नॉट डूइंग विद दिस oocyte। क्या क्लियर है? किसी को कोई डाउट आया है? कोई भी डाउट नहीं? तो कंटिन्यू करो।
फेज तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी इंटैक्ट करनी, यहाँ पे इंटैक्ट रहने वाली है। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैं लिख दे रही हूँ बस, इंटैक्ट है एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, अब क्या हो रहा है कि जो भी आपका क्रोमैटिन मटेरियल था, इट इज ट्राइंग टू गेट अटैच्ड, ट्राइंग टू गेट कंडेंस, उस फॉर्म में आने वाला है। अब जब ये कंडेंस हो रहा है, सो जो कंडेंसेशन आपको दिखेगा, सपोज मान लेते हैं ऐसा है कुछ, तो यहाँ पे ये जो ऐसे बीड्स टाइप ऑफ अपीयरेंस आपको मिलने वाली है। व्हाट यू आर गोइंग टू वॉच, यहाँ पे कि कुछ बीडेड अपीयरेंस मिल रही है। यहाँ पे निकम आपको लैम्ब्रश तो नहीं मिल रहा है, मैंने सेम कलर यूज कर दिया है इसमें भी, आपको लैम्ब्रश तो नहीं मिल रहा है, बट एक बीडेड टाइप ऑफ अपीयरेंस यू आर वाचिंग। ये सेंट्रोमियर्स नहीं है इतने ज्यादा, ओके, बस ये कि कंडेंसेशन स्टेजेस शो कर रहे हैं एंड इनके टीलोमियर्स जो है दे आर नॉट वेल ओपन, कि आपको बहुत क्लियर दिख रहे हैं ऐसा नहीं है। टीलोमियर्स मींस एंड पोजीशन, दे आर आल्सो इनक्लोज्ड और एक बीडेड टाइप ऑफ अपीयरेंस मिल रही है। बीडेड अपीयरेंस, beaded appearance is symbolic of the thing कि the chromosome here is trying to condense itself as much as possible, अपना maximum condensation ये show कर रहा है and they are also trying to come close to each other। एक और चीज जो यहाँ पे we don't want to forget, आपके pair of duplicated centrioles, ठीक, और nucleolus। जो बीड्स और स्ट्रिंग वाले जो होते हैं, तो वो और कंडेंस कैसे होता है, मतलब फिर वो उसको रिपल्सन होता है और वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग जो था, जब न्यूक्लियोसोम बहुत सारे अटैच हुए थे, दैट वाज बीड ऑन स्ट्रिंग, उसको हमने बोला था क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। हालांकि जैसे मैक्सिमम न्यूक्लियोसोम्स एक साथ बन के आ रहे हैं, उसके बाद वहां तक जो था न्यूक्लियोसोम क्या थे, 8 हिस्टोन थे खाली, ठीक है। अब इसके बाद सब नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स उसमें लगेंगी एंड देन क्रोमोसोम विल गेट मोर पैक्ड, ठीक है। सो ये मोर पैकिंग हो रही है इसकी एंड दिस इज द बीडेड अपीयरेंस, राइट। लेप्टोटीन क्लियर? यस श्री, क्या पूछ रहे हैं आप? किस नाम की है? यस मैम। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट फेज पे आते हैं। नेक्स्ट फेज गुड। यहाँ पे नहीं लिखेंगे ज़ाइगोटीन 1 क्योंकि ज़ाइगोटीन इज ओनली फॉर वन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट फेज ज़ाइगोटीन। यहाँ पर बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगी। जब ऐसे बनाओ दिस मींस के इंटैक्ट है, ठीक। न्यूक्लियोलस रहेगा, न्यूक्लियोलस रहेगा और आपके क्रोमोसोम्स आ चुके हैं, ठीक। क्रोमोसोम्स आ चुके हैं एंड अभी बीडेड में थे, अब ये इनका प्रॉपर सेंट्रोमियर एंड ये ऐसे, ठीक। एंड सेकेंड वाला इसका सेंट्रोमियर एंड ऐसे। सो क्रोमोसोम्स क्या दिख रहा है कि क्रोमोसोम्स दे आर अलाइनिंग विद ईच अदर, ठीक, दे आर कमिंग क्लोज विद ईच अदर, क्योंकि मियोसिस इज अ थिंग जहाँ पे नॉट जस्ट प्लॉइडी इज गेटिंग हाफ बट ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट थिंग कि क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर भी होना है, तो उसी के लिए दिस इज ऑल जस्ट द प्रिपरेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये फेज जो है दिस इज प्रिपरेटरी टू क्रॉसिंग ओवर, इसमें अभी कुछ भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, ठीक, बट जस्ट के दो क्रोमोसोम्स
they are coming together. ठीक, ये दोनों क्रोमोसोम्स जो है देखो इनकी हाइट सेम है, their looks are same. These two chromosomes are called homologous chromosomes. They are homologous to each other. Happy birthday, Manal. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Wish you a very best of future. Do well in your life. Thank you, ma'am. Hope you become a successful doctor. And आप सामने होते तो we must have celebrated your birthday here. Happy birthday. And Nikita is saying कि gift भी देते. Nikita is saying कि gift भी देते. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, बेटा, take care. चलिए, let's continue. So यहाँ पर आ जाते हैं वापस. And this ये जो तुम देख रहे हो, देखो कोई भी क्रोमोसोम होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है? अब this is not possible to show सारी चीजें एक साथ. और अभी जो है वो खुद कॉम्पैक्ट है. इसके ऐसा नहीं कि 4 नहीं बने हैं, ये बने हैं, बट ये इसके पीछे है, somewhere back. ठीक है, ये इसके पीछे है. So that is why. और ये ऐसे दिख रहा है, राइट? एंड इस फेज में ये जो दोनों दिख रहे हैं, तुमको पहले सिखाना पड़ेगा मुझे कुछ. पहले एक नॉर्मल क्रोमोसोम देखो, ये एक क्रोमोसोम है, एंड एक और क्रोमोसोम यहाँ पर आई एम शोइंग, ये एक और क्रोमोसोम है. ओके, ठीक, ये हो गया क्रोमोसोम 1 एंड ये हो गया क्रोमोसोम 2. ठीक, ये वाला पार्ट मान लेते हैं A है, ये वाला B, इसका भी इधर, हाँ चलो CD लिख दो. ठीक है, तो ये B और C जो है ये both of them are homologous to each other. ठीक, और ये जो A और B थे ये क्या है? They are sister chromatids. They are sister chromatids. यहीं पर से सारी कंफ्यूजन आपको रहती हैं. ये A and B are sister chromatids और B and C क्या है एक दूसरे के लिए? Homologous. They are homologous to each other. तो अब जब ये करीब आ रहा है ना, ये वाला सीन यू आर वाचिंग, इसी चीज को कहते हैं homologous chromosomes. ठीक है? The same thing is called homologous chromosome. तो ये homologous chromatid है, कंप्लीट आपका homologous chromosome हुआ. अब जब ये homologous chromosomes वाले पोर्शन दे आर टुगेदर और आप इसे वॉच कर रहे हैं, दिस सीन इज कॉल्ड बाइवेलेंट. बाइवेलेंट. अगर आप ये चारों एक साथ देखते तो उसको टेट्राड वर्ड कहते हैं. A और B तो मतलब S फेस में एक वजह से एक कॉपी बनती है, तो A और B सेम है. तो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, तो A और A लिख सकते हैं. A और A आप लिख सकते हैं, बोथ आर सेम, लेकिन यूजुअली ये होता है दोनों सेम ही होते हैं इनफैक्ट. और जब ये कॉइलिंग होती है ना बेटा तो कुछ इस तरीके से होती है, बल्कि जो 3D में पॉसिबल है दिखाना कि ये ऐसे जाके कॉइल करेगा और ये वाला समझ लो कि ये कुछ इसके बैक से कॉइल करेगा. वो कॉइलिंग होती है बट दैट इज नॉट शोन हियर, वो आपको दिखाई नहीं जाती है क्योंकि वो सिमिलर ही होते हैं. और जैसे P और C को हम जैसे वो मेंडल में पढ़े तो कैपिटल T और स्मॉल T लिख सकते हैं क्योंकि मेरे सारे ट्रेड्स भाई कैपिटल मेंडल की अलग थी और आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें उनका नोट करने का तरीका अलग है. तो सब साइंटिस्ट के अलग अलग पैटर्न्स हैं. मेंडल जो है डोमिनेंट कैरेक्टर को कैपिटलाइज करते हैं, कुछ और साइंटिस्ट हैं जो रिसेसिव कैरेक्टर्स से लिखते हैं. नहीं B और C एलील्स की तरह ही होंगे ना. अलील, अब तुम लोग के कंफ्यूजन बढ़ते चले जा रहे हैं. ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इट इज हैविंग लॉट ऑफ जीन्स. अब इसके ऊपर बहुत सारे जीन्स लगे हैं, ठीक है. अगर मान लीजिए 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम आसपास लगे हुए हैं ना, ठीक, तब यहाँ पर जो जीन लगे हुए हैं लाइक ये जीन 1 और जीन 2, ये दोनों अलीलिक जीन्स हैं.
है ना, ये दोनों वाली जीन्स है और इसी वजह से ये दो क्रोमोसोम्स को भी कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो अगर मान लो, ठीक है, मेंडल पे चलते हैं, अगर ये दिस इज फॉर टॉलनेस, तो अगर मान लेते हैं कि ये कैपिटल हो सकता है कंप्लीट डोमिनेंट टॉल, और मान लेते हैं कि सपोज दिस इज फॉर ब्लैक हेयर, तो यहाँ पर ये स्मॉल बी है तो माइल्ड ब्लैक जा रहा है। तो अलग अलग जीन्स अलग अलग प्ले कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे, आप जैसे आपने जेनेटिक्स में पढ़ा, तो मेंडल बहुत सक्सेसफुल के उनके में ऐसे कट्स नहीं आ रहे थे, राइट, बट बहुत सारे जीन्स हैं which are having some cuts, ठीक, बहुत सारे जीन्स हैं जहाँ पर उनके इतने नैरो हॉरिजॉन में दे आर प्रेजेंट कि वो एक साथ कॉपी हो जा रहे हैं। देन वो एक साथ कॉपी हो जा रहे हैं, बिल्कुल तो सेम चले जाएंगे, लेकिन उनको बेस्ट करने के लिए दैट इज व्हाई मियोसिस इज रिक्वायर्ड। मियोसिस आएगी, क्रॉसिंग ओवर करेगी। आप वो टर्म मुझे बताइए। नहीं, रिकॉम्बिनेशन तो हो गया, रिकॉम्बिनेशन होता है आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, एक नया कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। आपने ये पढ़ा, जब सर ने पढ़ाया था तो एक वर्ड आपको बताया होगा, उस वर्ड का मेंशन कीजिए, एंड सर ने ये भी बोला होगा कि इसका जानी दुश्मन क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज। लिंकेज, लिंकेज का जानी दुश्मन होता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। ड्रोसोफिला में देखा गया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में। सो यहाँ पे व्हाट यू आर वाचिंग कि अगर कुछ जीन्स है सपोज आसपास प्रेजेंट है, तो मे बी देयर आर लिंक्ड जीन्स, वो एक साथ ही कॉपी हो जा रहे हो। देन तो मेंडल सक्सेसफुल थे इन अ वे कि उन्होंने जितने भी चूज किए थे उनकी लिंक्ड नहीं थी, उनकी लिंक्ड नहीं थी, राइट। बट अगर सपोज लिंक्ड होती तो ही मस्ट नॉट हैव गॉट द सेम रिजल्ट विद सक्सेस, लकीली ही गॉट ऑल दैट, ठीक। तो बहुत जगह से आपके मल्टीपल इनहेरिटेंस चल रहा है, मल्टीपल अलील्स चल रहा है, आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग चल रही है, तो बहुत जगह पे तो मल्टीपल अलील्स चल रही हैं, है ना, व्हिच आर डीलिंग दिस। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इनको आप अलील्स बोलेंगे, ये वाला इज अलील टू दिस वन, ये वाला इज अलील टू दिस वन। वो एक सेम लोकेशन में, सेम लोसाई में इफ दे आर प्रेजेंट, तो दे आर अलील्स। बट सपोज के अलील्स या जीन्स दे आर सिटिंग क्लोज टुगेदर, देन दे आर लिंक्ड। कितना परसेंट लिंक है, दैट यू कैन ओनली नो बाय डूइंग द लिंकेज मैपिंग। जो हाँ, जो स्टुअर्ट थे उन्होंने आपके लिंकेज मैप को प्ले किया था, एंड दिस यू ओनली नो बाय लिंकेज की मैपिंग आप करके पा सकते हैं। बट एनी हाउ क्रॉसिंग ओवर जब होता है, दैट इज सीन कि व्हेन कितना भी लिंक हो, इफ अ क्रॉसिंग ओवर इज डन, तो न्यू कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड। और उसी क्यों आते हैं ये न्यू कॉम्बिनेशंस, बिकॉज यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम वो लिंक भी थे, बट फिर भी दे आर नाउ कमिंग क्लोज टुगेदर एज बाइवेलेंट। अब जब ये बाइवेलेंट आ गए हैं जाइगोट में, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज वहां पर दे विल फॉर्म रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, वो रैप करेंगे खुद को। हाँ दिशा बोलो। जब ऐसे फेस में जब ये रेप्लिकेट होते हैं तो ऐसे फोर ऐसे बनाते हैं, मतलब जैसे आपने कहा इंटरफेस जो मैंने दिखाया था, तो नहीं उसी में ऐसे जो सिस्टर क्रोमैटिड आप बोल रही हैं, इसमें जो अमाउंट ऑफ डीएनए वो डबल हो रहा है। हाँ बिल्कुल, अमाउंट ऑफ डीएनए तो डबल हो ही रहा है, 2C का 4C हो रहा है, बट 2N का 2N ही रहने वाला है ना, ये तो मैंने कल बताया था आपको, 4N नहीं होने वाला है, ठीक है, 2N का 2N ही रहने वाला है, 4N नहीं होने वाला है। चलो ये हो गया बाइवेलेंट। यहाँ पर क्या हुआ जाइगोट जीन में कि टू ऑफ द जो homologous chromosomes थे, they are now close together and this is now forming bivalent। बस अब ये एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं और कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक। अब जब ये एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, सो अब इसके फर्दर नेक्स्ट स्टेज आएगी where
they will try to form some recombination nodules. ठीक, इसी बाइवेलेंट के बीच में कुछ सीमेंटिंग मटेरियल है जो एक्ट कर रहा है और इसी चीज को आप एक ऐसे कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड आल्सो साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. This is called also synaptonemal complex. समझ में आ गया? क्लियर है निकिता? यहाँ पर क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, रेशमा, okay, got it. ठीक है? So यहाँ पर bivalent आपने देखा, bivalent के लिए ही we are using a word synaptonemal complex. Now we are on this next stage, Paschitine. लेकिन उससे पहले ये जरूर देख लीजिए कि what is the scenario of the centriole. Centriole अभी भी इसी पोजीशन पे है, ठीक है? Centriole are still on one point, एक ही पोल पे है अभी भी. ओके, चलो नेक्स्ट स्टेज देखते हैं. नेक्स्ट स्टेज Paschitine. Paschitine तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है. Paschitine तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट. Paschitine. अब इससे पहले जो आपने देखा यहाँ पे कि they have form a synaptonemal complex, they have form a bivalent. अब जब ये आ गए हैं यहाँ तक तो अब ये क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसे नॉर्मली आए थे दोनों, सपोज मानते हैं यस, यहाँ पे दोनों नॉर्मली आए थे अभी तक पहले बाइवेलेंट पे व्हाट यू हैव सीन. अब ये नहीं रहेगा, ठीक है. सो दे आर फॉर्मिंग रैप, दे आर एक्चुअली रैपिंग ऑन ईच अदर. और इसी चीज को कहा जा रहा है, बहुत सारे कुछ एरियाज हैं यहाँ पे जो ये एक दूसरे के ऊपर रैप कर रहे हैं, लाइक इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, अ लॉट ऑफ पॉइंट्स दे आर टचिंग विद ईच अदर, है ना? तो बहुत सारा पॉइंट्स पे ये एक दूसरे से टच कर रहे हैं. सो टेट्राड वर्ड आप यूज कर रही हैं, टेट्राड वर्ड ठीक है. एग्जैक्टली क्या यहाँ पर देखो, जो ये अभी भी बाइवेलेंट ही है, अभी भी दे आर बाइवेलेंट. ठीक, टेट्राड वर्ड यूज करते हैं इस पॉइंट के लिए जब ये पूरे चारों हैं, दिस इज कॉल्ड टेट्राड. ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेट्राड. अभी भी दे आर बाइवेलेंट. यस, गॉट इट? अभी भी दे आर बाइवेलेंट. तो ये जब पॉइंट बन रहा है, जब ये सारा पॉइंट हो रहा है, स्टिल दिस इज बाइवेलेंट. ये अभी भी बाइवेलेंट है और बहुत सारा पॉइंट पे दे आर टचिंग विद ईच अदर. तो मे बी दे आर चेंजिंग द जीन्स, कुछ क्रॉसिंग ओवर चल रही है, राइट? हमको ये फीलिंग आ रही है कि कुछ क्रॉसिंग ओवर चल रही है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट पे ये रैप हो गए, राइट? और जब ये रैप हुए तो इट वाज द सिग्नल टू द सेंट्रियोल to start moving apart. अब now the process has begun. You should move apart. और न्यूक्लियोलस जो है धीमे धीमे डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, न्यूक्लियोलस will gradually start diminishing. तो यहाँ पर what you are watching कि a lot of crossing over is expected. बस इतना ही हो रहा है in this Paschitine. Exactly. जैसे भी they are a part of prophase only. तो उसको तो जबरदस्ती साइंटिस्ट दे हैव डिवाइडेड ना इनटू नंबर ऑफ फोर्सेस. बाकी वो प्रोसेस वही है कि पूरा का पूरा क्रॉसिंग ओवर इज डन इन प्रोफेज. बहुत सारे बुक्स में दे इवन डोंट डिस्टिंग्विश ईच एंड एवरी फिगर, बस आपको बता देते हैं कि सो एंड सो फेज इज देयर और बस they just tell you like a crossing over is taking place in the prophase 1. So next phase
is डिप्लोटीन. नेक्स्ट फेज जो डिप्लोटीन, और मैंने पहले भी बताया है कि वो अभी भी टेट्राड वर्ड जो आप यूज कर रहे हो वो एग्जैक्ट 4 बॉडीज के लिए है. जहां पे वी आर पॉइंटिंग आउट दैट इज द बाइवेलेंट पोजीशन, और अभी भी उनके पास ये द क्रोमोसोम्स आर इन दिस सिचुएशन ओनली. क्रोमोसोम उनके पास वैसे ही है. कहीं कहीं किसी किसी ने इस तरह से फिगर दिखाया है एंड उसके ऊपर सेकंड क्रोमोसोम ले जाके उन्होंने इस तरीके से दिखाया है. मतलब जस्ट टू मेक यू क्लियर कि ये 4 पार्ट्स है इनके, राइट. सो यहाँ पर अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब सेंट्रियोल्स भी पार्ट में जाने लगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल आल्सो ट्राई टू गेट डिमिनिश, लाइटर होने लगी, ब्रेक होने लगी एंड सेंट्रियोल्स दे आर मूविंग अपार्ट. और एक और चीज यहाँ पे देखने को मिली कि लास्ट वाले फेज में जब ये थे दे वर टोटली रैप ऑन ईच अदर, इस वाले फेज में द रैपिंग विल गेट ओपन, मींस कि जो भी क्रॉसिंग ओवर थी दैट इज डन एंड नाउ दे आर ओपनिंग देमसेल्व्स. दिखा रही हूँ ठीक. सो व्हाट यू आर वाचिंग हियर कि दे आर अभी भी दे आर ओपनिंग बट दे आर स्टिल सम पॉइंट्स वेयर दे आर टच विद दिस बाइवेलेंट. बाइवेलेंट फोकस में है कि दे आर स्टिल सम पॉइंट वेयर दे आर इन टच. इसको क्या कहते हैं? काइज़मेटा, राइट. गुड. तो काइज़मेटा गाइस आप याद रखेंगे कि काइज़मेटा is the only position where actual crossing over has taken place. वो रैप तो हुए थे but this is the actual position where crossing over has taken place. और ये अपनी आसानी के लिए हम लोग बस एक बार दिखाते हैं. This must be 2 points पे 3 points पे these chiasmata can be seen. ठीक है. तो ये these chiasmatas are the actual position where crossing over has taken place in spite of making so many nodules and all. चलिए तो अब धीमे धीमे they are getting farther. ठीक, एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो चुके हैं. मीन्स they are opening up. जो उन्होंने नॉट बनाई थी अब now they are opening that knot and now you can see the actual position where crossing over has taken place. ये हो गया. अब मैंने जो यहाँ बना दिया है अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देती हूँ ताकि आपको आइडिया रहे. आपका डस्टर इतना बड़ा क्यों है? I don't know. ये सेंट्रियोल्स जो है they are on the opposite poles की तरफ they are moving. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्टिंग्विश नहीं रही अब, it is damaging. और जो ये आप देख रहे थे these are the sister chromatids. At this point को you are saying कि it is chiasmata, right? अब ये मैंने इसलिए दोबारा क्यों किया क्योंकि जस्ट आई ट्राई टू शो कि अभी ये साइड में है. दिस इज नॉट इन द सेंटर, दिस इज नॉट इन द सेंटर, दिस इज ऑन सम साइड. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट फेज, diakinesis. Diakinesis is the last phase. नहीं शीनी, there will be crossing over in Paschitin. Paschitin में ही तो सारी crossing over हो रही है. क्रॉसिंग ओवर हुई ना यहाँ पर, एग्जैक्ट क्रॉसिंग ओवर दिखी आपको इन पैशिटीन, राइट.
and then pachytene के बाद you are watching diplotene when they are opening. तो crossing over हुई है एक pachytene, but diplotene तक आते आते they are opening up. They are just trying to show you the exact point जहाँ पे crossing over हुई है. अब वो exact points are visible as chiasmata. ठीक है? Got it? और यहाँ पे जब ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, so side by side they are also making spindle भी बना रहे हैं side by side. Okay, next phase पे आते हैं. Next phase is diakinesis. डायाकाइनेसिस है, ये बिल्कुल पोल पे आ गया है. सेंट्रियोल एंड स्पिंडल फॉर्मेशन चल रही है. ठीक है, द पेयर ऑफ द सेंट्रियोल्स नाउ दे आर ऑन द पोल्स. और ये जो था ना ऑन द साइड, दिस इज नाउ ट्राइंग टू कम इन द सेंटर. वो सेंटर में आने लगा है. और एक और चीज, देयर इज वन मोर थिंग कि ना सिर्फ ये सेंटर में आ रहे हैं, बट ये और ज्यादा एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. द chiasmata जो है is now going more farther apart. Just last point of the crossing over that they have reached. Means anyhow they are trying to open up, but एकदम last point means intact last आते of this prophase 1, the complete crossing over has taken place. जितनी भी crossing over होनी है, वो सारी crossing over will take place by the end of this prophase 1. तो अभी भी chiasmata visible है. तो chiasmata as the site of crossing over is visible. और ये कहाँ पे आ गए हैं? They are now in the center. They are trying to relocate themselves in the center. The homologous chromosomes, they are now in the sector 2 की next phase which is now to come is metaphase. और मेटाफेज की तो आपको वैसे पता है, इट इज फेमस इक्वेटोरियल प्लेट, है ना. तो वहां पे तो दे नीड टू बी इन सेंटर, सो दैट इज व्हाई दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग कि ये बस अब सेंटर में आ रहे हैं. और अभी व्हाटएवर यू आर वाचिंग इज द प्रॉपर 2 आर्म स्टेज आपको इनकी दिख रही है. डिप्लोटीन से दिखना स्टार्ट हो गई है एंड डायाकाइनेसिस का प्रॉपर 2 आर्म स्टेज यू आर वाचिंग. स्पिंडल फाइबर बन रहा है. न्यूक्लियोलाई देखो मैंने दिखाना बंद कर दिया है. न्यूक्लियोलस ऑलरेडी डिमिनिश हो चुका है. दिस इज नो मोर विजिबल. सो प्रोफेज 1 इज कंप्लीट. इज देयर एनी डाउट टू एनीवन इन प्रोफेज 1? अब इसके बाद बस बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग इज नॉर्मल. दैट इज मेटाफेज 1. ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन है, किसी कोई डाउट है? चलो तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं. एंड अब यहां से बहुत इजी हो चुका है, अब कुछ भी नहीं तुमको करना है. मेटाफेज 1. मेटाफेज 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. मैं मेंशन करती हूं कहीं आप कंफ्यूज ना हो कि आई एम जस्ट शोइंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब यहाँ पे नहीं दिखेगी. द सेंट्रियोल्स आर ऑन द 2 opposite poles. The type of spindle they are forming in animal cell is astral, amphiastral, या फिर एक और वर्ड है amphiastral, और इन प्लांट्स anastral. ठीक है, और amphiastral एनिमल्स में बेटा एस्ट्रल रहेगा क्योंकि एस्टर रेज है बिकॉज ऑफ ट्यूबुलिन. ठीक है, प्लांट्स में एनास्ट्रल रहेगा. और एस्ट्रल के लिए ही एक और वर्ड है सेंट्रिक भी.
उसी के लिए वर्ड बोल देते हैं एम्फिस्ट्रल या एस्ट्रल। ये हो गया सेंट्रियोल्स, दोनों पेयर ऑफ द सेंट्रियोल्स आर हियर, प्रॉपर स्पिंडल इज हियर। अब बस करना क्या है कि वही सेम क्रोमोसोम व्हिच यू हैव सीन इन द एंड ऑफ ये ऑफ प्रोफेज 1 डायकाइनेसिस में आ चुके हैं सेंटर में। अब बस दे विल प्लेस देमसेल्फ ऑन दिस। अब अपने आप को वो लगा लेंगे इन दिस, स्पिंडल पे लगने वाले हैं। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट इन मेटाफेज 1? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट द इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटर पे है ये बस। और अभी भी देख लो कि सिनेरियो इज द थिंग कि ये यहाँ पर है अभी भी टच, स्टिल ये टच है। याद करो माइटोसिस, जस्ट रिमेंबर द माइटोसिस और बताओ कि इन माइटोसिस एट व्हिच फेज यू ऑल हैव सीन के पतंग अपना वापस जा रही थी? एनाफेज, राइट? तो यहाँ पर भी सेंट्रियोल विल टेक back their spindle, their tubulin in which phase? Anaphase. तो अब यहाँ पर कुछ चेंज है, वहां पर जो लगा हुआ था माइटोसिस में तो ये था, ठीक? और इक्वेटोरियल प्लेट दिखाई है, ये बस इक्वेटोरियल प्लेट दिखाई है आपको, और ये काइनेटोकोर से स्पिंडल लगे थे। यहाँ पर ये स्पिंडल्स आर अटैच्ड विद काइनेटोकोर, यहाँ पर भी स्पिंडल काइनेटोकोर से ही है, बट ये सिंगल थे। और जब वो छोटे हुए तो दिस ब्रेक अपार्ट और ऐसे ऐसे गया, ब्रेक हुआ था। यू हैव सीन के सेंट्रोमियर गेट्स ब्रेक, है ना? सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग थी, बट यहाँ पे देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, क्योंकि ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, so they don't need to split। यहाँ पर बस ये होगा कि ये दोनों को अलग कर देंगे क्रोमोसोम्स को जब एनाफेज आएगा। तो लेट्स क्विकली सी एनाफेज। इजी लग रहा है आप लोग को ये चैप्टर? I'm trying to show you all just as a movie. So ये सारे स्पिंडल के कंडीशन है इन दी मेटाफेज में ये कंडीशन है, बट एनाफेज में जब आएगा तो ऑफ कोर्स ब्रेक होगा स्पिंडल, ठीक? स्पिंडल ब्रेक होगा। स्पिंडल ब्रेक होगा दिस मींस कि जो भी क्रोमोसोम्स लगे थे अब दे विल ब्रेक अपार्ट। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है? पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, बाइवेलेंट है, राइट? तो दे विल ब्रेक अपार्ट। तो जब ये ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे मैंने व्हाइट वाला दिखा रही थी आपको, तो ये ऐसे है ना, ये वाला, और एक और दिखा देते हैं। अब जो दिखते हैं बेसिकली तुमको दिखाए जाते हैं वो पूरे 4 सेट्स को दिखाना शुरू कर देते हैं। तुम 2 ही क्रोमोसोम पे लेके चलो, और यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे कि व्हेन यहाँ पर ये दोनों पॉइंट थे, सपोज ये पॉइंट थोड़ा सा पिंक हो गया है यहाँ पर, राइट? ये वाला भी अटैच रहा होगा, ठीक? ये और इसमें क्या हुआ होगा? इस सम पोर्शन ऑफ व्हाइट, बस इतना ही सा तो हुआ है कि यहाँ पर व्हाट इज दिस शोइंग? जेनेटिक एक्सचेंज दे आर शोइंग, बस। और एनाफेज से ये दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज जस्ट शोइंग द जेनेटिक एक्सचेंज। सो बेटा यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि एनाफेज 1 है एंड यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, कि कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई क्रोमोसोम्स के 2 सेल्स बन रहे हैं अलग से, मतलब हाफिंग हुई हो क्रोमोसोम की, लाइक दैट थिंग और नथिंग दैट टाइप इज हैपनिंग। यहाँ पे बस जस्ट कि द क्रोमोसोम्स जो हाफ हो रहे हैं 2 सेल्स में, दे आर हैविंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस।
माइटोसिस में दे वर हैविंग द सेम कॉम्बिनेशन, जब अलग हुए थे। यहाँ पे दे आर हैविंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, क्योंकि जेनेटिक एक्सचेंज हैज टेकन प्लेस, क्रॉसिंग ओवर हैज टेकन प्लेस। ठीक है, कहीं पर कोई डाउट आया किसी को? ठीक, अब जो मैंने ये चीज दिखाई आपको, so this is the thing which is actually taking place in anaphase, but इसी anaphase को we can see like this also। यहाँ पर एग्जैक्ट क्या हो रहा है कि अब नाउ जो सेल है this is taking little bit of oval shape। anaphase में जो सेल था वो ओवल हो रहा है, the cell is taking a oval shape। और ये जो आपने देखा, अभी तक मैंने वैसे ही दिखाया है, एक पार्ट दिखाया है जब when it is breaking apart। ठीक है, अब इसको तुम देख सकते हो, पॉइंट क्या होता है कि माइटोसिस को रिमेंबर करो, दे वर अटैच्ड फ्रॉम द सेंट्रियोल। यहाँ पर भी दे आर अटैच्ड फ्रॉम द सेंट्रियोल, और क्रोमोसोम्स वगैरह में तुमको दो तरह से दिखाया है, ऐसे भी और इसको लाइक दिस आल्सो, ऐसे भी दिखाया है। तो यहाँ पर भी इट इज नाउ लाइक दिस, ये अपना शो करेगा, और इधर वाला साइड में थोड़ा सा और इधर वाले साइड पे भी अभी पता चल रहा है ना, ऑन इट्स फोरआर्म इट इज हैविंग, सो यहाँ पे जेनेटिक एक्सचेंज दिखेगा the way I have shown you there, and यहाँ पर भी जेनेटिक एक्सचेंज दिखेगा। अब एग्जैक्ट पिक्चर इज गेटिंग क्लियर कि ये एनाफेज है, ये थोड़ा सा अर्ली एंड दिस इज द लेट ऑफ द एनाफेज, ये भी एनाफेज ही है। And this is how all things are setting up। तो ये एनाफेज है exactly। So यहाँ पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, the centrioles are on the two poles, and second के this whole thing is attached with the centromere। किस चीज से अटैच है? With the centromere। centromere से पूरा क्रोमोसोम अटैच है। वहां पर जब तुम लोगों ने देखा था माइटोसिस में तो भी अटैच था, बट सिर्फ ये सीन था, और मियोसिस में सीन इज ये कि 4 पूरे दिख रहे हैं वेन्स। ओके, एंड जस्ट विद सम न्यू कॉम्बिनेशंस क्रॉसिंग ओवर के बाद का। अब क्या होना है? अब कुछ नहीं होना है, अब बस जस्ट लास्ट का फेज आने वाला है, टीलोफेज। अब तो बस 2 सेल्स में दे हैव टू डिवाइड। पढ़ ली तुमने, मियोसिस हो गया पूरा। अब क्या ओवल हो चुका था, सेल फरोइंग हो गई। प्लांट सेल होगा तो सेल प्लेट फॉर्मेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर कर रही है, एंड आते आते पूरा रीअपियर हो जाएगी, एंड दे हैव गॉट new combinations of the chromosome in their respective cells। और न्यूक्लियोलस भी रीअपियर होगा। ठीक है, बस दिस इज द टीलोफेज और कुछ नहीं। टीलोफेज एंड करेगी तो 2 सेल्स बन जाएंगे, with a proper nuclear membrane, with a proper nucleolus, वही सेम चीज है और कुछ भी नहीं है। एनाफेज से ही इनफैक्ट सिचुएशन क्लियर हो गई थी, राइट? बस तो ये इन दोनों सेल्स की प्लॉइडी इज N, है ना? N है।
अभी इस सेल की इंट्रॉइडी 2N, ठीक, एंड नाउ द प्लॉइडी हियर इज N, ठीक, क्लियर? किसी को भी कोई डाउट आया? तो कंप्लीट हो गई। अब यहां पर आएगी इंटरफेस 2। इंटरफेस 2 के बाद नेक्स्ट फेज प्रोफेज 1, ठीक। इंटरफेस 2 इज मोस्टली सीन इन एनिमल सेल्स ओनली, याद रखेंगे कि दिस इज सीन इन एनिमल सेल्स ओनली। हाँ, प्रोफेज 2, तो ये हो जाता है थोड़ा। इंटरफेस 2 इज जस्ट सीन इन एनिमल सेल्स, और इंटरफेस 2 जो है बेटा, यहाँ पर ये याद रखना है कि नो डीएनए रेप्लिकेशन, साथ ही साथ कि दिस इज अ वेरी फास्ट फेज, एंड इन दिस फेज यहाँ पे मैक्सिमम जो देखी जा रही है वो है G1 या G2, कि they are in the preparation, mostly G2, क्योंकि they are just preparing themselves for next division. Second thing कि interphase 2 जो है seen in animal cells, most of the plant cells they skip this interphase and they directly jump from telophase to prophase 2. Plant cells they directly jump from telophase 1 to prophase 2 में वो जंप कर जाते हैं, and interphase is skip, ठीक है? तो क्लियर हुआ? प्रोफेज 2 में अब मुझे कुछ नहीं बताना, वही सेम आपकी माइटोसिस होने वाली है, बस सेल दिखा दे रही हूँ। अभी जो भी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, एंड दे हैव गॉट द क्रोमोसोम्स उनके पास है, एंड इन्हीं के अच्छा, एंड वन मोर थिंग, sorry, just a second. They have got this chromosomes, दोनों की अलग अलग माइटोसिस होने वाली है, ठीक है, एंड दोनों की अलग अलग माइटोसिस होने वाली है। ये नहीं है कि ये, अब एक तरह से ये ध्यान रखना है ये भी कि जो वो फेजेस हुई नहीं, दैट वाज वंस, यहाँ पे ट्वाइस होगी, क्योंकि एक पूरी माइटोसिस यहाँ के लिए चलेगी फॉर दिस सेल, और एक पूरी माइटोसिस चलेगी फॉर दिस सेल, समझ रहे हैं? 2 बार हो रही है ये चीज पूरी, एंड एट द एंड आपको 4 सेल्स मिल जाएंगे विद डिफरेंट combinations, and all these 4 cells their ploidy is going to be N only, ठीक, and this is the end of the meiosis। बस यहाँ पर बिल्कुल वो माइटोसिस के स्टेप्स हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सेम एज दी माइटोसिस स्टेप्स meiosis 2 में। क्या क्या आने वाला है ये देख लेंगे। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, और एट द एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के लिए cytokinesis will result into this combination, this will result into this combination। तो जो ये combination मिल रहा है cytokinesis में, वो कैसा है? कुछ ऐसा, एक ये देखते चलो, है ना, एक ये और एक ये, और इस वाले में चेंज जो आप देख रहे हैं, ठीक। तो दिस वे इट इज शोन कि 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यू आर वाचिंग एट द एंड ऑफ दिस meiosis 2, ठीक है, 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यू आर वाचिंग। सो बस meiosis आपकी कंप्लीट हो चुकी है, राइट? दिस चैप्टर इज ओवर। इस चैप्टर में अब कुछ नहीं बचा हुआ है, एक्सेप्ट कि मुझे आपको बताना पड़े, एक और पॉइंट है आपके लिए कि आप मुझे बताएंगे, यू ऑल हैव टू टेल मी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis।
What is the significance of meiosis? मतलब रिकॉम्बिनेशन एक तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक, एक अमाउंट को भाग कर रहा है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी वेरी गुड, जेनेटिक वेरिएशन मिल रहा है, न्यू कॉम्बिनेशंस मिलेंगे मींस जेनेटिक वेरिएशन है। सेकंड थिंग कि बहुत सारे देयर आर हिडन डिजीजेस and they get appear because of this meiosis. Animals में तो you cannot do anything, but हाँ तो lower animals में तो कर सकते हैं, not in case of human beings. But plants के लिए जैसे आप choose करते हो the best of the feature, तो if these meiosis are bringing out some of the hidden diseases, तो आप उसको discard करते जाओगे and you will choose the best of the trait. और इसी तरह से बहुत अच्छे best of the plants they are chosen this way. उसी को कहते हैं सेलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन, ये सिलेक्शन होता है and they choose the best of the plant in this way. So yes, we are done with this chapter. हमने ये कर लिया है। इसके बाद एक पॉइंट है which is called karyotyping. क्या कोई मुझे बताएगा what is karyotyping? What is karyotyping? कैरियो का मीनिंग आपसे जान लेंगे, इस क्रोमोसोम के लिए आ रहा है, ठीक। सो लाइक ह्यूमन बीइंग्स दे हैव गॉट 46 क्रोमोसोम्स। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे 46 क्रोमोसोम्स दे आर ऑफ सेम साइज, दे लुक सेम। यहाँ पे यू हैव गॉट 2 पेयर्स है ना, 2 सेट्स हैं 23 एंड 23 के। तो कैरियोटाइपिंग में क्या किया जाता है? Usually in magnified images of the chromosomes they are taken. आपने सारे chromosomes ले लिए suppose और उसकी image ले ली, अब उससे particular cutting की जाएगी with the help of scissors and all. The photographs are cut and then they are placed together और जो उसके homologous chromosomes है they are fixed together and तभी आपको पता चल पाया है कि like it is 23 का 2 set you have because of this karyotyping. तो karyotyping करने से ये बहुत अच्छा रहता है कि like you get complete set of chromosomes, है ना। if कोई diseases आ रहे हैं, कोई hidden diseases आ रहे हैं या aneuploidy है, polyploidy है, any type of chromosomal aberration है, तो this can be seen with the help of karyotyping. लेकिन किसी के यहाँ पे ऐसा होता नहीं है कि normal baby is going to deliver and the person is going for the karyotyping. ये चीजें बाद में होती हैं, ये चीजें तभी की जाती हैं like if there is any sudden distinct type of body has taken place on the birth और उसके ऊपर जब वर्क किया जा रहा होता है then that is done with the karyotyping. नॉर्मली ये सब कुछ नहीं किया जाता है, नॉर्मली बस जस्ट दिस इज अ प्रोसीजर और वो बस प्रोसीजर है इसीलिए कि कुछ भी अगर हिडन डिजीजेस आर देयर तो यू कैन आइडेंटिफाई इट विद द हेल्प ऑफ दिस karyotyping. किसी को भी कोई डाउट, कहीं पे भी कोई इशू? बायोमोलिक्यूल्स लगा दिया है मैंने, आपको लिंक आ जाएगा फ्रॉम माय साइड आई कैन से फॉर बायोमोलिक्यूल्स। सो एक पॉइंट यहाँ पर से आता है कि इफ सपोज ये जो माइटोसिस या मियोसिस हो रही है, इफ सपोज मियोसिस तो इज विद द गैमेटिक सेल ओनली, तो उसको तो हटा देते हैं फॉर अ टाइम, बट सपोज माइटोसिस पे चलते हैं एंड इफ सपोज देयर इज अनकंट्रोल्ड माइटोसिस, तो क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ती है विद मियोसिस। कैसे पॉलीप्लॉइडी क्यों होगी? पॉलीप्लॉइडी क्यों होगी? सेल बनते जाएंगे। हां तो अगर मतलब सिंगल सेल पॉलीप्लॉइडी तब होती है इट इज व्हेन कि सेल डिवाइड ना होने पाए। कैंसर हो जाएगा। कैंसर हो जाएगा। So this is called the enigma of cancer. If there is uncontrolled mitosis, ठीक? So this will lead to cancer. आपको पता होगा कि जो एनिमल सेल वॉल होती है, उसमें होती है एनिमल सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर कुछ स्पेशली कोलेस्ट्रॉल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के लिंक्स होते हैं, ठीक है।
That is called a cell coat. That is called a cell coat. Cell coat भी कोई कोट ऐसा नहीं है, but that word is given for them. ठीक है? और they are very specific for a particular kind of cell. They are very specific for a particular kind of cell. तो अब अगर this specificity is lost, cell is not recognizing each other. कि भाई एक मान लेते हैं कि एक सेल था, उसने डिवाइड करके दो बनाए, यहीं पर तो बनाएगा कहीं वो जब जाएगा तो ये दो जो बना रहा है, दिस इज योर स्किन, ये आपका हैंड है और यहाँ पर एक डिवीजन हुआ, एक सेल था, नाउ इट हैज डिवाइडेड इनटू टू, ठीक, एंड देन अगेन इसने डिवाइड करा इनटू टू, इसने फिर से दो अपने बना लिए फर्दर, एंड देन अगेन, एंड दो चीजें हो रही हैं कि इफ दे हैव, एक जब ये बनाते हैं एपिथेलियल का, तुमने लाइन देखी हुई कितने अच्छे से लाइन है, कॉलमनर कितने अच्छे से लाइन, दे नो कि वेयर दे हैव टू प्लेस द सेल, बट सपोज ये भूल गए कि यहाँ पर इनके बीच में क्या चेंजेस थी, हाउ दे वर्क, ठीक, तो दो तरह की चीजें हो सकती हैं, इफ दे विल फॉरगेट, द सेल कोड विल फॉरगेट, दो तरह की चीजें हो सकती हैं, एक और अंदर अगर माइटोसिस के चेक पॉइंट्स फिनिश हो जाए, ठीक, तो कंटिन्यूअस माइटोसिस होती रहेगी, तो बहुत सारे सेल्स आएंगे, ठीक, क्लम्प ऑफ सेल आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्यूमर, ठीक, दैट इज कॉल्ड ट्यूमर. ट्यूमर कैन बी बेनाइन, ट्यूमर कैन बी मैलिग्नेंट. इफ बेनाइन तो ट्यूमर है, अगर मैलिग्नेंट है तो दैट ट्यूमर इज कैंसर. ठीक, उसके लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि ऑन्कोजीन जो है, जो प्रोटो ऑन्कोजीन है, वो स्विच ऑन हो, ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन स्विच ऑन हो जाएंगी तो ऑन्कोजीन बन जाएंगी. बोलो. जनरली ऐसे भी रहते हैं कैंसर ज़्यादा एज के बाद कभी होना चांसेस बढ़ जाते हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, कैंसर बच्चों को भी होता है. हाँ. कैंसर साइलेंट डिसऑर्डर है, एक पड़ा रहता है बॉडी में, एंड ज़्यादा एज पे जाके वो आपको डायग्नोज होता है, और वो होती है यूजुअली उसकी लास्ट स्टेज. अभी बहुत सारी यंग, सोनाली बेंद्रे, an actress, if you know, she was very young, she was in her early 30s when she was diagnosed with the cancer. Lisa Ray, a budding model, and she has given the advertisement for Sprite. She was diagnosed with cancer and she was hardly 22. तो बहुत ही यंग एज पे भी कैंसर डायग्नोज हो जाता है. Those who are very conscious वो जाते रहते हैं for checkups and they can be diagnosed, ठीक. बट अगर नहीं जा रहे हैं, पड़े हुए हैं, reluctant, तो कैंसर होगा. लाइक यूजुअली मेरे यहाँ आई वॉज हैविंग अ मेड, लाइक शी हैज टेकन केयर ऑफ मी, शी वॉज माई नानी. उन्होंने जब से मैं पैदा हुई थी, शी इज टेकन केयर ऑफ मी, एंड लाइक शी वॉज हैविंग सम स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर, एंड अनफॉर्चुनेटली उनका सर्जरी जो भी हुई, एंड देन शी वॉज नॉट डायग्नोज्ड विद, and like उसमें फिर से gallbladder it got and all the things, and it becomes cancerous and she died because of that. तो gallbladders के stones है, ये जो भी चीजें आ रही हैं, these types of growth are seen, that should be immediately removed. उसको तुरंत रिमूव करवा देना चाहिए. सिम्टम्स सबसे बड़ी चीज अभी जो देखी जा रही है, दैट इज कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है अगर ट्यूमरस, उसको तुरंत रिमूव करवाना चाहिए. हाँ, अगर कोई रिमूव करवाएंगे, स्पेशली फीमेल्स है, लाइक दे हैव गॉट ब्रेस्ट कैंसर या यूट्रस में कैंसर है. यूट्रस कैंसर इज द कैंसर व्हिच इज यूजुअली सीन आफ्टर एज. शुरुआत में तो इट्स नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज गोइंग ऑन, ठीक, तब वो पता चलता है. बट सिम्टम्स किसी और जगह पे हो रहे हैं, स्किन पे कोई ऐसी एब्रेशन है या कोई लिम्फोमा है, दैट कैन बी शॉन टू द डॉक्टर. कोई भी नेजल एरिया में यहाँ पर या नेल्स के नीचे कुछ भी अगर यहाँ पर स्पेशली कोई ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं या नॉर्मल भी कुछ दिख रहा है, तो शुड बी शॉन विद अ स्किन स्पेशलिस्ट. ऐसा नहीं है कि हमेशा इट इज कैंसर. कभी कभी नॉर्मल मोल्स भी होते हैं, कभी कभी नॉर्मल मोल्स होते हैं, पर्सन्स को हिडन मोल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखते रहते हैं, बट डॉक्टर को दिखा देना चाहिए. एंड देयर आर सम स्पेशल चेक्स फॉर द कैंसर, वो चेक हो जाते हैं, उनके मार्कर्स होते हैं, या मार्कर प्रोटीन्स जो वो ब्लड में छोड़ रहे होते हैं. सो उनका अगर डायग्नोसिस हो गया देन ओके. अगर डायग्नोसिस में नहीं आ रहा है देन ओके, लीव इट अपार्ट, डोंट टच इट. और अगर आप रिमूवल किसी भी एरिया का करवा रहे हैं तो स्पेशली लाइक यूजुअली फीमेल्स में भी देखा गया है, यूट्रस की सर्जरी होती है,
सो अगर रिमूवल करवा रहे हैं तो शुड these things should be sent for the checks कि उसमें कैंसर तो नहीं था, क्योंकि उसके बाद पोस्ट थेरापीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैंसर जब तक एक पॉइंट पे है तब तो इट इज लोकलाइज्ड, अगर वो ब्लड में आ गया है देन इट विल फ्लो फ्रॉम होल पार्ट, जैसे हुआ ये किसके साथ, फिर वो अभी ये कौन से बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे, द एक्टर हु डाइड, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, वाज अ वेरी गुड आर्टिस्ट लास्ट 2 years बैक, उनकी डेथ हुई है, कौन से खान, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, इरफान खान, यस, उनकी जो बॉडी में हुआ था दैट वाज मेटास्टैटिस था। मेटास्टैटिस का मीनिंग होता है कि जो लोकलाइज फॉर्म थे अब नाउ दिस हैव कम इनटू द ब्लड और वो पूरे बॉडी पे इज ट्रैवल, और मैलिग्नेंट ट्यूमर नहीं, मैलिग्नेंट जब भी कोई भी बेनाइन ट्यूमर है, मान लीजिए ट्यूमर है सिंपल, ठीक, और अभी ये बेनाइन है और किसी को नहीं पता है कि कब ये कैंसरस बन जाएगा, जब भी ये लोकलाइज फॉर्म में भी अगर कैंसरस हो गया सो दिस इज मैलिग्नेंट, इसका आपने रिमूवल करवा दिया, सपोज इस पेशेंट का था उसने इसका रिमूवल करवा दिया, उसको नहीं पता था कि ये कैंसर है, कुछ भी एब्रप्शन लगा, कोई भी इशू था, उसने रिमूव करवा दिया, बाय द टाइम इनके सेल्स पड़े रहेंगे यहाँ पे, एंड दीस सेल्स, और रिमूवल होने से स्पेशली हो जाता है और ना भी करवाया जाए तो भी ज्यादा एज तक रह गए तो ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे, दे विल ट्रैवल थ्रू ब्लड स्ट्रीम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब ये मैलिग्नेंट फॉर्म ट्रैवल कर रहा है टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ बॉडी देन दैट इज कॉल्ड मेटास्टैसिस, उसको मेटास्टैसिस बोलते हैं। बेनाइन टू मैलिग्नेंट हो सकता है, मतलब नॉन कैंसरस ट्यूमर कैन टर्न इनटू अ कैंसरस ट्यूमर, जी, तो दैट इज यूजुअली सीन, और बस ये एक चीज होती है कि दिस इज बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। एक और चीज है कि जब सेल अपना सेल्फ खो दे, सेल कोड, ये लास्ट पॉइंट है आपके इस चैप्टर का, मैं छोड़ दे रही हूँ, इसको जाना जा सकता है, सेल अगर अपना सेल्फ कंट्रोल छोड़ दे एंड दे डोंट रिकॉग्नाइज ईच अदर, सो उस सिचुएशन में सेल्स जो होते हैं अपने ही सेल्स को दे विल बिहेव एज फॉरेन सेल्स, ठीक, ऑटोफैगी, एंड दैट इज द केस ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, ठीक, उस केस में ऑटो इम्यूनिटी होती है। बहुत सारे ऐसे थायराइड के भी डिसऑर्डर्स हैं वेयर सेल्स दे आर अटैकिंग देयर ओन सेल्स, ठीक, एक गोइटर होता है व्हिच इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ आयोडीन, ठीक, और एक और गोइटर है व्हिच इज बिकॉज ऑफ दिस ऑटो इम्यूनिटी, कि जो सेल्स हैं जो आयोडीन को लेके आपके थायरॉक्सिन को बना रहे हैं उनके ऊपर ही द बॉडी इज अटैकिंग, कि वो ऑटो इम्यून हो गए हैं उनके लिए। हाँ दिशा, बाइनरी फिशन कल की क्लास में कहा थी तुम, यू वर स्लीपिंग, क्या है बाइनरी फिशन और माइटोसिस में डिफरेंस? नहीं, who will tell the difference between binary fission and mitosis? हाँ, उसी के लिए एक और वर्ड बोला था, amitosis, ठीक है, that was amitosis. So usually जब किडनी ट्रांसप्लांट होती है, so at that time your body they play a very good defense metabolism, और उनको वो फॉरेन पार्टिकल्स की तरह देखती है, एंड दैट इज व्हाई द पेशेंट दे आर गिवन फॉर लॉन्ग पीरियड इम्यूनोसप्रेसिव्स आर गिवन टू देम, ठीक, बट जब ऐसा केस आ जाएगा तो यू कैन नॉट गिव दिस इम्यूनोसप्रेसिव, क्योंकि दिस इज, आप कितना देंगे इम्यूनोसप्रेसिव, ठीक है, आप कितना देंगे, एंड नॉर्मल इम्यूनिटी अगर इम्यूनोसप्रेसिव देंगे तो दैट इज फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दे आर इन द आईसीयू, वो अच्छी केयर रखी जा रही है, बट यहाँ पे अ पर्सन इज मूविंग, यहाँ वहाँ जा रहा है, इम्यूनोसप्रेसिव्स आप दे रहे हैं, तो हाउ दे विल एक्ट, उनकी नॉर्मल डिफेंस जो है वो कमजोर होती जाएगी, एंड दे कांट वर्क अगेंस्ट द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द माइक्रोब्स, के लिए भी दे कांट वर्क, ठीक, तो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। आई सपोज के दिस चैप्टर इज फुल्ली क्लियर टू एवरीवन।